Hello, my dear friends. Welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. In today's lecture, we will discuss section 167 of Criminal Procedure Code 1973, which is a part and parcel of chapter of investigation by police. Section 167 especially deals with whenever the investigation of any police officer is not concluded within 24 hours, then what will be the procedure? In short, we can say that what will be the procedure relating to पीसीआर, पुलिस कस्टडी रिमांड। तो आज के हम लेक्चर में सेक्शन 167 सीआरपीसी का डिस्कस करने वाले हैं कि अगर पुलिस अगर अक्यूज्ड को अरेस्ट करता है और 24 आवर्स में अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है तो उसके बाद प्रोसीजर क्या होगा, ये प्रोविजन सेक्शन 167 में है। मतलब पीसीआर किस ऑफेंस में क्लेम कर सकता है पुलिस ऑफिसर, क्या प्रोसीजर होगा, कितने दिन तक का पीसीआर हो सकता है, एमसीआर कितना होगा, ये सब आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इस पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इन पर्टिकुलर सेक्शंस पर पूछ सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस, सेक्शन 167। So procedure when investigation cannot be completed in 24 hours. Section 167 deals with whenever if the investigation is not completed. Suppose if the police officer arrests any accused person and if the investigation of police officer is not concluded within 24 hours, then what will be the procedure after that? We will discuss under this particular section. कि पुलिस जब कभी भी किसी accused को अरेस्ट करेगी तो 24 घंटे के अंदर उसको नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास अक्यूज्ड को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। बट व्हाट अबाउट इफ द इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स? अगर 24 घंटे के अंदर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है तो उसके आगे का प्रोसीजर क्या होगा? दैट इज डिस्कस अंडर सेक्शन 167। सो विद इन 24 आवर्स, officer in charge of police station or officer making investigation, if he is not below the rank of sub inspector, shall forthwith transmit to the magistrate. Suppose if the accused is arrested by the police officer, then within 24 hours the officer in charge of police station or officer making investigation, if he is not below the rank of sub inspector, shall forthwith transmit to the magistrate. accused को अरेस्ट करने के बाद ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो कि सब इंस्पेक्टर से बिलो रैंक का नहीं होना चाहिए, वो क्या करेगा? 24 घंटे के अंदर accused को ट्रांसमिट करेगा, मैजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करेगा। The magistrate may authorize the detention of the accused in such custody for a term not exceeding 15 days in the whole. Suppose if the investigation is not completed within 24 hours, then under such a circumstances, if the offense is a non-bailable one, police can ask for PCR. Police can ask for custody. Under such a circumstances, the magistrate can authorize a detention of accused in such custody for a term not exceeding 15 days in the whole. तो अगर 24 घंटे के अंदर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है तो पुलिस ऑफिसर अक्यूज्ड को प्रोड्यूस करेगी मैजिस्ट्रेट के पास और मैजिस्ट्रेट के पास आर्ग्यूमेंट करेगी कि हमको और इंट्रोगेशन करना है इस अक्यूज से, तो हमको इसकी कस्टडी चाहिए। तो मैजिस्ट्रेट उसकी कस्टडी ग्रांट कर सकता है। कितनी? टर्म नॉट एक्सीडिंग 15 डेज इन होल, मतलब इन टोटल ज्यादा से ज्यादा 15 दिन की पीसीआर या पुलिस कस्टडी रिमांड मैजिस्ट्रेट अलाउ कर सकता है। बट देयर शुड बी एटलीस्ट वन इंटरवल। दोनों 15 दिन में एटलीस्ट एक इंटरवल होना जरूरी है, मतलब 8 दिन 7 दिन। नॉर्मली क्या होता है कि मैजिस्ट्रेट 3 दिन 2 दिन का पीसीआर देता है, उसके बाद और जरूरत पड़ी तो पीसीआर को एक्सटेंड करता है। बट इन टोटल 15 दिन से ज्यादा पीसीआर मैजिस्ट्रेट ग्रांट नहीं कर सकता। And if consider further detention unnecessary, he may order the accused to be forwarded to a magistrate. Suppose if the magistrate grant a PCR and after elapsing the time of PCR, if the magistrate felt that the further detention is unnecessary, then magistrate may forward the accused to magistrate.
तो क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल अक्यूज्ड को पीसीआर ग्रांट किया, मजिस्ट्रेट ने 3 दिन का पीसीआर ग्रांट किया, 3 दिन के पीसीआर के बाद वापस से पुलिस ऑफिसर ने उस अक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के सामने लेकर आया और मजिस्ट्रेट के सामने वापस से उन्होंने पीसीआर मांगा, लेकिन अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि अब पीसीआर अननेसेसरी है तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, पीसीआर रिजेक्ट करेगा और अक्यूज्ड को एमसीआर में भेजेगा, मजिस्ट्रेट कस्टडी रिमांड में। नाउ Section 2A, Section 167 subclause 2A. The magistrate may authorize the detention of the accused person otherwise than in the custody of police beyond the period of 15 days if he is satisfied. के 15 दिन से ज्यादा, 15 दिन तो पीसीआर का टाइम हो गया, अब 15 दिन के बाद मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, मैजिस्ट्रेट उसको डिटेंशन में रख सकता है, किसके, मैजिस्ट्रेट कस्टडी रिमांड में, एमसीआर में उसको रख सकता है। इफ ही इज सेटिस्फाइड बट नो मैजिस्ट्रेट शैल अदरवाइज द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन इन कस्टडी अंडर दिस पैराग्राफ फॉर अ टोटल पीरियड एक्सीडिंग। अब मैजिस्ट्रेट कस्टडी रिमांड कितने दिन तक, ये भी क्वेश्चन है कि 15 दिन तक तो पीसीआर है, 15 दिन के बाद अक्यूज्ड को एमसीआर में भेजा जाएगा मैजिस्ट्रेट कस्टडी रिमांड में। अब मैजिस्ट्रेट कस्टडी रिमांड कब तक, अब नॉट एक्सीडिंग पीरियड, नॉट एक्सीडिंग 90 days where the investigation relates to an offense is punishable with death or life or not less than 10 years। समझ रहे हो कि 90 डेज तक मैजिस्ट्रेट कस्टडी रिमांड में रखा जा सकता है। कौन से ऑफेंस के लिए, एक आधा ऑफेंस जो है वो पनिशेबल विद डेथ है, डेथ पेनल्टी है, लाइफ इंप्रिजनमेंट है और जिसकी 10 साल या 10 साल से ऊपर सजा है, ऐसे ऑफेंस में 90 डेज तक मैजिस्ट्रेट कस्टडी रिमांड में उसको रखा जा सकता है। देन 60 डेज वेयर द इन्वेस्टिगेशन रिलेट्स टू एनी अदर ऑफेंस, 60 डेज वेयर द इन्वेस्टिगेशन रिलेट्स टू एनी अदर ऑफेंस, मतलब 10 साल के नीचे अगर कोई ऑफेंस में पनिशमेंट है उस सिचुएशन में मैजिस्ट्रेट कस्टडी रिमांड 60 डेज की रह सकती है। अब ये 90 डेज और 60 डेज का पीरियड जो है, फॉर एग्जांपल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू है, अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है पुलिस की, तो इन्वेस्टिगेशन खत्म कहां पर होती है, चार्जशीट फाइल होने के बाद, पुलिस रिपोर्ट फाइल होने के बाद। बट फॉर एग्जांपल अगर पुलिस ऑफिसर ने 90 डेज में अगर ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ है, लाइफ इंप्रिजनमेंट है या 10 साल से ज्यादा सजा है और अगर पुलिस ऑफिसर 90 डेज में अगर चार्जशीट फाइल नहीं करता है, उस सिचुएशन में 90 डेज जैसे खत्म हो गए तो अक्यूज्ड को बेल, अक्यूज्ड का राइट, बेल एज अ राइट हो जाएगा, मतलब आफ्टर 90 डेज अक्यूज्ड इज इंटाइटल्ड टू क्लेम बेल एज ऑफ राइट इवन द ऑफेंस इज अ मर्डर। समझ रहे हो कि 90 दिन के अंदर अगर चार्जशीट फाइल नहीं होती है और अक्यूज जेल में है तो उस सिचुएशन में 90 डेज के बाद बेल अक्यूज का राइट बन जाएगा, उसको बेल पर छोड़ना ही पड़ेगा। और अगर दूसरे ऑफेंस से 10 साल से नीचे अगर पनिशमेंट है और 60 दिन में अगर चार्जशीट फाइल नहीं होती है और अक्यूज जेल में है तो अक्यूज को बेल पर छोड़ना ही पड़ेगा एज ऑफ राइट। बट ये मिसकंसेप्शन माइंड में मत होने दीजिए कि जो 90 डेज और 60 डेज है ये चार्जशीट फाइल करने का पीरियड है, ऐसा जरूरी नहीं है। चार्जशीट बाद में भी कभी भी फाइल की जा सकती है, 90 डेज में ही फाइल करना ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर 90 डेज में फाइल नहीं होती है और अक्यूज्ड अगर जेल में है तो 90 डेज खत्म होने के बाद या 60 डेज खत्म होने के बाद अक्यूज्ड एज ऑफ राइट बेल क्लेम कर सकता है, कोर्ट भी बेल रिजेक्ट नहीं कर सकता है। इवन इफ द ऑफेंस इज मर्डर, मर्डर का भी ऑफेंस है तब भी उसको बेल एज ऑफ राइट मिलेगी। सो ऑन द एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड ऑफ 90 डेज और 60 डेज एज द केस मे बी द अक्यूज्ड पर्सन शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल इफ ही इज प्रिपेयर्ड टू एंड डज फर्निश्ड बेल। तो 90 डेज 60 डेज खत्म होने के बाद अक्यूज्ड शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल, उसको बेल पे छोड़ना पड़ेगा अगर वो जेल में है तो। सेक्शन 2B, no magistrate shall authorize detention in any custody under this section unless the accused is produced before him। तो कस्टडी कब देगा मैजिस्ट्रेट, किसी भी अक्यूज को कस्टडी कब ग्रांट करेगा, अगर अक्यूज को मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किए, मतलब अक्यूज कहीं और है और मैजिस्ट्रेट उसको कस्टडी ग्रांट नहीं करेगा। until and unless the accused is produced before the magistrate cannot grant a detention। तो मैजिस्ट्रेट डिटेंशन ग्रांट नहीं करेगा। 2C, नो मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास
not specially empowered in this behalf by the High Court shall authorize detention in the custody of police. तो मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, जो सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट है, अगर उसको हाई कोर्ट ने स्पेशल पावर नहीं दिया होगा तो वो पुलिस कस्टडी ग्रांट नहीं कर सकता, पीसीआर ग्रांट नहीं कर सकता. 2A, where judicial magistrate is unavailable, accused can be produced before executive magistrate who are empowered to grant PCR not exceeding 7 days. Suppose this is a rule that after arrest, accused shall be produced before the magistrate within 24 hours. But suppose if there is no magistrate available, under such a circumstances, the accused can be produced before the executive magistrate. And even executive magistrate is having a power to grant a PCR but not exceeding 7 days. तो अगर मैजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, तो उस सिचुएशन में 24 आवर्स के अंदर अक्यूज्ड को एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को भी पावर है पीसीआर ग्रांट करने का, लेकिन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट सिर्फ 7 दिन तक का ही पीसीआर ग्रांट कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं. इन टोटल now CBI Delhi versus Anupam J Kulkarni, that is a particular case. The Supreme Court explained as to when or from which date the time period for remand is to be computed, कि कहां से time period of remand compute होगा. The court held that the period of first 15 days is to be computed from the date of detention as per the order of the magistrate and not from the date of arrest by the police, and the period of 60 or 90 days is to be computed from the date of such detention order and hence would include the detention period of first 15 days as well. समझ रहे हो? तो जो 15 जो पीसीआर के 15 दिन है वो भी इंक्लूड होंगे, वो 90 डेज में या 60 डेज में, समझ रहे हो? दैट मे बी इंक्लूडेड. तो ये टोटल पीरियड 90 डेज और 60 डेज कैलकुलेट करने के लिए होगा. नाउ नरेश alias Nana versus State of Maharashtra. It is well settled that even if 90th day is a Sunday, the police must arrange to see that the charge sheet is filed if not on 90th date but on 89th day. तो 90 समझो 90 दिन के अंदर तो चार्जशीट फाइल करना पड़ेगा, नहीं फाइल किए तो अक्यूज को बेल पर छोड़ना पड़ेगा. अगर फॉर एग्जांपल जो 90th डे है, 90वां दिन जो है वो अगर संडे है तो ये केस में डायरेक्शन दिया पुलिस ऑफिसर को कि वो तो एकदम अचानक से संडे नहीं आया है, पहले से ही पता है कि 90 दिन जब खत्म हो रहे उस दिन संडे है, तो पुलिस ने ऐसी अरेंजमेंट करना चाहिए कि वो सैटरडे को एक दिन पहले 89th डे को ही चार्जशीट फाइल करे. If the last day, as the case may be, happens to be holiday or non-working day, then in that circumstances also court is bound to accept the charge sheet. अगर holiday है या non-working day है, उस situation में भी कोर्ट पे बाइंडिंग है कि चार्ज शीट को एक्सेप्ट करे, वो चार्ज शीट को धुतकार नहीं सकता, उस दिन भी चार्ज शीट एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि 90 डेज और 60 डेज का यहां पर कंसेप्ट है. इन अदर वर्ड्स, प्रेजेंटेशन ऑफ सच चार्ज शीट कैन नॉट बी रिफ्यूज, कि मतलब कोई पुलिस ऑफिसर चार्ज शीट प्रोड्यूस कर रहा है तो मैजिस्ट्रेट हॉलीडे है या नॉन वर्किंग डे है ये कह के उस चार्ज शीट को रिजेक्ट नहीं कर सकता है, उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. नाउ द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द एग्जामिनर ऑन सेक्शन 167 महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन 2019. Judicial magistrate first class can grant police custody under section 167 of Code of Criminal Procedure for a maximum period of 14 days from the date of arrest, 15 days from the date of arrest, 14 days from the date of first production before the magistrate, 15 days from the date of first production before magistrate. So the magistrate may authorize the detention of the accused in such custody for a term not exceeding 15 days in the whole. So 15 days from द डेट ऑफ फर्स्ट प्रोडक्शन बिफोर द मैजिस्ट्रेट, जब मैजिस्ट्रेट के सामने पहली बार उसको लेकर आया जाएगा वहां से 15 दिन तक का पीसीआर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ग्रांट कर सकता है. तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन. नाउ जेएमएफसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, द मैजिस्ट्रेट टू हुम अक्यूज्ड इज फॉरवर्डेड आफ्टर अरेस्ट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑथराइज डिटेंशन इन पुलिस कस्टडी फॉर अ टर्म not exceeding 30 days, not exceeding 14 days, not exceeding 15 days as he thinks fit. यहां पर भी अगर हम देखें not exceeding 15 days in the whole, the correct answer is option 3, not exceeding 15 days.
उत्तराखंड जुडिशियल एग्जामिनेशन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, वेयर द रिलेवेंट प्रोसीजर इन द क्रिमिनल प्रोसीजर हैज बीन प्रोवाइडेड इन केस व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स, वेयर सेक्शन 57, सेक्शन 157, सेक्शन 167, ऑल ऑफ दिस। तो अगर हम देखें सेक्शन 167 डील्स विद द प्रोविजन व्हेन द इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स. What will be the procedure that is mentioned under section 167? So correct option is C. So this is section 167 which we have discussed. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.